السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری ویڈیو کا عنوان ہے حضرت ماریہ قبطیہ کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی۔ ہجرت کے چھٹے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا بھر کے بڑے بڑے بادشاہوں کے نام خطوط ارسال فرمائے۔ اس میں کیا کیا گیا؟ اس میں کہا گیا کہ اسلام لے آؤ، سلامتی میں رہو گے اور دوہرے اجر کے مستحق قرار پاؤ گے، اور آپ لوگوں کو مستحق قرار دیے جاؤ گے، ورنہ دوسری صورت میں تمہاری قوم کے اسلام قبول نہ کرنے کا گناہ تمہارے اوپر بھی ہوگا۔ اس کے بعد آل عمران کی آیت 64 لکھی گئی اور خطوط کی آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر مبارک لگائی گئی۔ یہ خطوط جامعیت و اختصار کے حسین امتزاج کا عظیم شاہکار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری کے ابتدائی دنوں میں خط شاہ مصر اسکندریہ کو لکھا، جس کا نام جریج بن متی قبطی تھا اور اس کا لقب مقوقس تھا۔ حضرت حاتب بن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پاس بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک لے کر حضرت حاتب کے دربار میں پہنچے اور متانت کے ساتھ ان کو جا کر کہا، اے شاہ مقوقس، آپ سے پہلے اس ملک میں ایک شخص گزرا ہے جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ سمجھتا تھا۔ اللہ نے اسے نشان عبرت بنا دیا، لہٰذا دوسرے سے عبرت حاصل کرو، ایسا نہ ہو کہ دوسرے تم سے عبرت حاصل کرے۔ اس موقع پر مقوقس اور حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان مکالمہ ہوا جو حاضر خدمت ہے۔ مقوقس، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیے کہ کیا وہ اللہ کے نبی ہیں؟ حاتب بن ابی، وہ نبی ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول بھی ہیں۔ مقوقس، اگر وہ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو پھر کیا وجہ ہے جب ان کی قوم نے انہیں اپنی بستی یعنی کہ مکہ سے نکالا تو انہوں نے اس کے لیے اللہ کے عذاب کی بد دعا نہیں کی؟ حاتب بن ابی بلتان، کیا آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول نہیں مانتے؟ مقوقس، بالکل مانتے ہیں۔ حاتب، تو پھر آپ بتائیے کہ جب ان کی قوم نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا اور انہیں سولی دینے کا ارادہ کیا اور پھر اللہ انہیں آسمان پر اٹھا کر لے گیا تو انہوں نے اس بات کی بد دعا کیوں نہیں کی کہ ان کا رب بنی اسرائیل کو ہلاک کر دے؟ شاہ مقوقس، آپ ایک حکیم عقل مند آدمی ہیں اور ایک حکیم دانا آدمی کی طرف سے آئے ہیں۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ تحفے آپ کے ساتھ بھیجتا ہوں، اور یہ نگہبان معبور نام تھا جو آپ کے علاقے تک آپ کی نگہبانی کریں گے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خط کا جواب لکھوایا جو اس طرح کا تھا، محمد بن عبداللہ کی حضور من جانب مقوقس عظیم القبط، اما بعد، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گرامی نامہ پڑھا اور جو کچھ اس میں تحریر تھا اور جس کی آپ نے دعوت دی میں نے اس کو سمجھ لیا ہے۔ میں جانتا ہوں ایک نبی نے آنا تھا، لیکن میرا خیال ہے اس کا ظہور ملک شام سے ہوگا۔ بہرحال میں نے آپ کی کاست کی عزت کی ہے، میں آپ کی طرف سے 2 کلیسے ماریہ اور سیرین کو بیچتا ہوں جو قبط میں عظیم المرتبت تھے، اور کچھ لباس و تحائف بھی پیشی خدمت کرتا ہوں، اور خچر بھی آپ کی سواری کے لیے روانہ کر رہا ہوں۔ آپ پر سلامتی ہو۔ خط کی ہمراہ چند تحائف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجے، جن میں 2 کنیزیں ماریہ قبطیہ اور ان کی بہن سیرین بھی تھیں۔ اس کے علاوہ ایک اونٹ، ایک سفید رنگ کا خچر، ایک نیزہ، قیمتی لباس، قیمتی خلعت اور 1000 مسکال سونا شامل تھا۔ بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ شاہ مقوقس نے ایک معالج بھی ساتھ بھیجا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر واپس بھیج دیا کہ انا قوم لانا اکلو حتی نجوعین وَإِذَا أَكَلْنَا لَا تَشْبَعُوا، ہم لوگ سخت بھوک کے وقت کھانا کھاتے ہیں اور ابھی بھوک باقی ہوتی ہے، ہم کھانے سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش تھی کہ وہ اپنے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی امانتیں جلد سے جلد حاضر خدمت ہو کر پہنچا دیں، لیکن خواتین کی ہمراہی کی وجہ سے وہ اس برق رفتاری سے چل نہیں سکتے تھے۔ یہ مختصر سا قافلہ منزلوں پہ منزلیں طے کرتا ہوا مدینہ کے قریب تر ہوتا جا رہا تھا۔ دوران سفر حضرت حاتب بن ان کے سامنے اسلام کی حقانیت بیان کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بتاتے تھے۔
बिलखुसूस दोनों खवातीन बड़े गौर से बातें सुनती थीं। अगर किसी मकाम पर कोई बात समझने में दुश्वारी महसूस करते तो इस्तफसार कर लेती। वो समझ गई थी कि दीन इस्लाम ही वो दीन है जो हक है और अल्लाह ताला का पसंदीदा दीन है। आखिरकार कई दिनों की तवील मुसाफत के बाद ये छोटा सा काफिला हदूद मदीना मनूरा में दाखिल हुआ। हजरत हातिब रजी अल्लाह तआला अन्हु सीधे उम्मे सलीम रजी अल्लाह तआला अन्हा की यहाँ तशरीफ ले गए। मुअज़्ज़ज़ खवातीन को वहाँ ठहराने के बाद बारगाह रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए। अपने महबूब के करीब पहुंचकर नहायत अदब व मोहब्बत से सलाम अर्ज किया और शाह मकूकस का खत निकाल कर पेश खिदमत किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकूकस के खत की तरफ देखा और उसे खोले बगैर ही बता दिया कि इसमें क्या लिखा है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा मारिया से शुरू से ही पर्दा करवाया। फिर मकूकस लिखा था कि मैं आपकी खिदमत में 2 लड़कियां बजवा रहा हूँ जिन्हें कब्ती कौम में बड़ा दर्जा हासिल है। गोया उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीम के इजहार के तौर पर इंतहाई आला खानदान की लड़कियों का इंतखाब करके बजवाया था, ना कि गुलामों की मार्केट से खरीद कर। हजरत मारिया कब्तिया को हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के पड़ोस में हजरत हारसा बिन नुमान रजी अल्लाह तआला अन्हु के मकान में ठहराया गया। अगरचे मारिया कब्तिया कनीज थी, लेकिन इसके बावजूद आपको दीगर अज़वाज मुतहरात की तरह पर्दे में रहने का हुक्म दिया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों बहनों को एक साथ अपनी गुलामी में जमा करना पसंद न फरमाया और इन दोनों में से किसी एक के इंतखाब के लिए बारगाह इलाही में दुआ की, ए अल्लाह अपने नबी के लिए एक मुंतखब फरमा। चुनाचे हजरत सैयदतुना मारिया कब्तिया रजी अल्लाह तआला अन्हा को अल्लाह पाक ने अपने हबीब के लिए यूं मुंतखब फरमाया कि जब आप ने दोनों कनीज़ों पर सलाम पेश फरमाया तो हजरत सैयदना मारिया कब्तिया रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया, जबकि आपकी बहन हजरत सैयदना सीरीन रजी अल्लाह तआला अन्हा ने कुछ देर बाद इस्लाम कबूल किया। फिर हजरत सीरीन रजी अल्लाह तआला अन्हा को आपने हजरत हसन बिन साबित को हिबा कर दिया, जिनसे हजरत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु पैदा हुए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मारिया कब्तिया रजी अल्लाह तआला अन्हा को बहुत पसंद फरमाते। आप रजी अल्लाह तआला अन्हा पर करम नवाजी फरमाते हुए अलहदा मकान अता फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ औकात में आप रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास तशरीफ़ ले जाया करते। उस वक़्त उनकी उम्र मुबारक 20 साल की थी। कुछ अर्सा बाद सैयदा मारिया कब्तिया मवेशी हो गई। आपकी देखभाल के लिए हज़रत अबू राफ़े कुछ अर्सा बाद सैयदा मारिया कब्तिया से हुई। आपकी देखभाल के लिए हज़रत अबू राफ़े रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का गाहे बगाहे तशरीफ़ लाते। सैयदा मारिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक बच्चे की माँ बन गई। ज़ुल्हज 8 हिजरी में उन्हें से शहज़ादा रसूल हज़रत सैयदना इब्राहीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत हुई। लोंडी जब बच्चे की माँ बने तो उसे उम्मे वलद कहते हैं। हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने खामद को बच्चे की खुशखबरी देने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा। जिब्राईल अलैहिस्सलाम पहले ही खुशखबरी दे चुके थे। जब हज़रत अबू राफ़े रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बारगाह नबुव्वत में हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेटी की विलादत की खबर देने आए हो? जी हाँ या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको चांद सा बेटा अता फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए और इब्राहीम नाम रखा। हज़रत मारिया कब्तिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के यहाँ बेटी की पैदाइश की खबर आन वक्त में मदीना मुनव्वरा के गली कूचों में फैल गई और जब तमाम अज़वाज मुतहरात को पता चला तो उनके अंदर जज्बा रुशक ने जगह बना ली। वो जानती थी कि अब हज़रत मारिया कब्तिया जो हैं की कदरों मंजिलत उनके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़रों में और भी बहुत बढ़ जाएगी। 7वें रोज़ हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अकीका किया गया तो 2 मेंढे ज़िबा किए गए, उनका सर मंडाया गया और सर के बालों के बराबर चांदी तोलकर सदका की गई और बालों को ज़मीन में दफना दिया।
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक जब 1 साल से कदरे ज़्यादा हुए तो उनमें अपने वालिद महबूब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुशाबहत के आसार नमूदार होने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटे से बड़ी शफ़क़त से पेश आते थे। एक रोज़ हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हालत से अंदाज़ा लग गया कि उस जहाने रंगो बू से उनकी रुखसती का वक़्त करीब आ गया है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ थामे नखलस्तान में दाखिल हुए तो देखा कि इब्राहीम अपनी वालदा की गोद में दम तोड़ रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटे को अपनी आगोश में ले लिया। गम के आसार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अक़दस से नुमायां थे। पैदाइश के बाद 18 माह तक हज़रत इब्राहीम जिंदा रहे और फिर वफात पा गए। हज़रत मारिया कप्तिया पर बेटे की मौत का गम पहाड़ बनकर टूटा था, लेकिन अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ता क़यामत के लिए बिछड़ जाने का तसव्वुर उन्हें कभी ख्वाब में भी नहीं आया था। लिहाजा ये दाग जुदाई उनके लिए बेहद बड़ा नाकाबिले बर्दाश्त था। अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 4 साल रफ़ाक़त का ज़माना यूँ लगता था जैसे 4 सांसों में बीत गया। हर वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यादों में गुमसुम रहती थी। अब उनका ज़्यादातर वक्त याद अलाही में बसर होता था। 16 हिजरी का पहला महीना आया तो हज़रत मारिया कप्तिया का वक्त वसाल आ गया। लिहाजा बिस्तरे मरग पर दराज हो गई। उनकी बहन हज़रत सीरीन कप्तिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा करीब बैठी आंसू बहा रही थी और अब्दुर्रहमान बिन हसन करीब खड़ा खाला की तरफ बड़ी मासूम नज़रों से देख रहा था। सैयदा मारिया कप्तिया ने अपने भांजे की तरफ बड़ी मोहब्बत से देखा, जिसके पस मंजर में वो अपने बेटे इब्राहीम को देख रही थी। उसके सर और गालों पर बड़े प्यार से हाथ फेरा। बहन की तरफ ऐसी नज़रों से देखा कि वो तड़प उठी और फिर आखिरी सांस लेकर हमेशा के लिए खामोश हो गई। उस वक़्त उनकी उम्र 29 साल की थी। हज़रत सीरी कप्तिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आंसू थमने का नाम न लेते थे। बीबी मारिया कप्तिया के वसाल की खबर मदीना मनवरा की गली कूचों में फैल गई। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जन्नतुल बकी में दफन कर दिया गया। हज़रत मारिया कप्तिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अक्सर मुअर्रिखीन सीरत नगारों ने अज़वाज में शामिल नहीं किया, जो कि गलत है और हकीकतन अज़वाज मुतहरात में शामिल हैं। वो हदमे नबवी में आने वाली वाहद मिस्री खातून थी। उनका आबाई तवल्लुक ईसाई मजहब से था। वो शाही घराने से तवल्लुक रखती थी। उन्हें एक बादशाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा था। ना सिर्फ ये बल्कि उनका जिक्र मुबारक अशारे कनायों ही में सही ज़बूर में भी आया। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो मुख्तलिफ पेशीन गोइयाँ बाइबल के मुख्तलिफ मकामात पर आई हैं, उनमें से एक पेशीन गोई ये भी है, तेरी मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन में शहज़ादियाँ हैं, बल्कि मलका तेरे दाएं हाथ वो फेर के सोने से आरास्ता खड़ी हैं। अपने दाएं हाथ के अल्फाज पर गौर करना चाहिए। ये मुल्क यमीन का तर्जुमा है। सब मुअर्रिखीन मारिया खातून रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मुल्क यमीन बताते हैं। पेश गोई बाला में पहले बताया गया है कि वो शहजादी होंगी और उनका आना मुल्क यमीन की शान में होगा। ज़बूर की इबारत से यही आयाम होता है कि खातून जो खानवादा शाही से तवल्लुक रखती हो, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश की जाएंगी।